Welcome to all of you in my e-class. Today we discuss the systemic position, habitat and thallus structure of Sargassum. Sargassum is a member of class Phaeophyceae, order Fucales, family Sargaceae and genus Sargassum. The outstanding feature of the class Phaeophyceae, the member of Phaeophyceae is commonly known as brown algae due to presence of chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin. They have marine habitat and grows in shallow water in the intertidal zone of coastline. They are benthic and lithophytes. Lithophytes means they are attached by the substrate or hold fast to rocks or stones. They usually develop air bladder which provide buoyancy. The member of brown algae shows various types of thallus like heterotrichous, multiaxial, uniaxial and parenchymatous structure. In cell wall of brown algae, alginate and fucinic acid is present and reserve food material is laminarin and mannitol. In their life cycle, unilocular and plurilocular sporangias are present. In unilocular, haploid zoospores and in plurilocular, diploid zoospores are produced. Zoospores is uninucleate and biflagellated. Sexual reproduction in the member of Phaeophyceae, isogamous, anisogamous and oogamous. Next, the feature of Fucales. The member of Fucales, algae attached by substrate by holdfast, thallus, diploid and sporophyte. Reproductive organs are locked in special flask-like structure conceptacles. Sexual reproduction oogamous and sex organs born on diploid thallus. Fucales has a shorter anterior and longer posterior flagellum as sexual reproduction is absent and life cycle is diplontic. Next, family Sargaceae. The characteristic feature of this family, mostly members shows radial symmetry. Members shows complex morphology among all Fucales and lateral branching system is present in the member of Sargaceae and branching is monopodial. Occurrence of the Sargassum. Sargassum is a marine algae and commonly known as Gulf weed. Sargassum form huge floating masses in mid Atlantic Ocean. जो मध्य अटलांटिक सागर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक फ्लोटिंग मासेस जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. इस कारण क्या होता है कि अटलांटिक रीजन के उस भाग को सार्गेसो सी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बुसी हैबिटेट एंड लुक्स लाइक स्मॉल एंजियोस्पर्म्स. और इंडिया में जो है सार्गेसम की 16 स्पीसीज़ रिपोर्टेड की गई है जिसमें से मुख्यतः जो है वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट जो है कोस्ट लाइन जो वहाँ पर ये पाए जाते हैं. उनमें से कुछ मुख्य है सार्गेसम सीनेरियम, सार्गेसम कार्पोफिलम, सार्गेसम डुप्लिकेटम एंड सार्गेसम प्लेजियोफिलम. तो अब हम देखते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर हमें किस तरह से नज़र आती है इसकी थैलस स्ट्रक्चर. अब थैलस स्ट्रक्चर को हम देखें तो थैलस इसका जो होता है सार्गेसम का वो डिप्लॉइड और स्पोरोफाइट होता है. कैसा होता है? डिप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट थैलस एंड डिवाइड इनटू होल्ड फास्ट एंड मैन एक्सिस. दो भागों में बंटा रहता है, होल्ड फास्ट में और मैन एक्सिस में बंटा रहता है, मुख्य अक्ष में जिसे हम स्टेम कहते हैं. और होल्ड फास्ट जो है ये प्लांट्स है इसका स्ट्रक्चर और इसमें आप देखिए ये जो पार्ट है एक्सिस इसके नीचे होल्ड फास्ट रहता है. होल्ड फास्ट के द्वारा ये सबस्ट्रेट से यहाँ पर ये अटैच रहता है. उसके बाद हम देखते हैं कि जो होल्ड फास्ट है वो डिस्कॉइड और वार्टी स्ट्रक्चर होती है और ये जो है सबस्ट्रेट से उसको अटैच करता है. मैन एक्सिस की बात करें जो कि जिसे हम स्टेम कहते हैं वो इरेक्ट होता है और सिलेंड्रिकल या फिर फ्लैटेड बेलनाकार या फिर चपटा होता है और इसकी जो हाइट होती है इस एक्सिस की जो हाइट होती है 15 से
25 सेंटीमीटर के तक होती है। और इस पर जो है बहुत सारे क्या होते हैं, प्राइमरी लेटरल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी लेटरल्स, बहुत सारी ब्रांचेज पाई जाती है, क्योंकि ब्रांच्ड एक्सिस होता है, उस पर बहुत सारी ब्रांचेज पाई जाती है। जो सबसे पहले जो है मेन एक्सिस पर प्राइमरी लेटरल्स पाए जाते हैं, और ये प्राइमरी लेटरल्स जो होते हैं अनब्रांच्ड ग्रोथ के होते हैं। जैसे ये अनब्रांच्ड ग्रोथ होती है इसकी, और उसके ऊपर चाहे मेन एक्सिस हो चाहे फिर प्राइमरी लेटरल्स हो, दोनों पर भी जो है लीफ लाइक ब्रांचेज पाई जाती है, जैसे सेकेंडरी लेटरल्स या फिर लीफ कहते हैं। ये आप देखिए, ये लेटरल्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो मेन एक्सिस पर भी है, या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज है, लॉन्ग शूट जो है उस पर भी पाया जाता है। तो ये जो है कैसे है, लेटरल या लीफ के रूप में जाने जाते हैं, और इसको सेकेंडरी लेटर्स भी कहते हैं। और ये जो लीव्स है वो लीव्स कैसी है, फ्लैट, चपटी है, सिंपल, और एक इस पर डिस्टिंक्ट मिड रिब, स्पष्ट मिड रिब इसके ऊपर हमें नज़र आ रही है, आप देखिए यहाँ पर। और इस लेटर्स के ऊपर, इस लीफ के ऊपर जो है बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर, अगर उसको लाइट में देखें तो बहुत सारे जो है डॉटेड स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। वो डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होती है, वो जो है कंसेप्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे पाए जाते हैं। क्रिप्टोस्टोमेटा उसके ऊपर पाए जाते हैं, क्रिप्टोस्टोमेटा स्टाइल कंसेप्टिकल्स होते हैं वो। ये आप देखिए यहाँ पर, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लीव्स पर जो है बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स कहाँ पाए जाते हैं, लीफ की दोनों सरफेस पर पोर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओस्टियोल। ओस्टियोल जो है वो क्या होते हैं, एक स्मॉल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, कैविटी, स्मॉल फ्लास्क लाइक एक कैविटी होती है। वो कैविटी जो है इस ओस्टियोल के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, और उस कैविटी को हम कहते हैं क्रिप्टोब्लास्ट या फिर क्रिप्टोस्टोमेटा। क्रिप्टोस्टोमेटा ये हमें इस लीफ पर नज़र आ रहे हैं, ये क्रिप्टोस्टोमेटा होते हैं। और ये क्रिप्टोस्टोमेटा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैविटी होती है, और यह कैविटी बाहर की ओर एक स्मॉल पोर के द्वारा खुलती है, जिसे ओस्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। और इस ओस्टियोल से जो है फिलामेंट्स जो है बाहर की अनब्रांच फिलामेंट बाहर की ओर निकले रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराफाइसिस। और अब हम देखते हैं कि मेन एक्सिस जो है उसके आधारी भाग में कुछ स्वॉलन और स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, स्वॉलन, स्टॉक्ड एंड राउंडेड स्ट्रक्चर, फूली हुई और सवरंत और गोलाकार संरचना वाली जो है एक हमें नज़र आती है। ये देखिए आप, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, और ये कहलाती है एयर ब्लेडर, वायु आशय कहलाते हैं। और ये एयर ब्लेडर क्या होते हैं, इसमें एयर भरी रहती है, और ये जो है प्लांट्स को फ्लोटिंग में सपोर्ट करते हैं और उसकी बायोसी इंक्रीज करते हैं, उत्प्लावकता बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वाटर में डूबते नहीं हैं। कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है कि एयर ब्लेडर जो है लीफ में टर्मिनेट होते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर, ये एयर ब्लेडर है, और ये एयर ब्लेडर जो है आगे एक लेटरल्स में, लीफ में जो है टर्मिनेट हो गया है। और कुछ एल्गोलॉजिस्ट या जो फाइगोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार जो है एयर ब्लेडर जो है रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। किस में करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये जो लीफ एक्सिस जो है, इस एक्सिस से कुछ जो है रिपीटेडली ब्रांच जो है निरंतर रूप से विभाजित कुछ शाखाएं निकली रहती है, और इसको हम कहते हैं रिसेप्टिक्युलर ब्रांचेस। क्या कहते हैं, रिसेप्टिक्युलर ब्रांचेस कहते हैं। और इसको इसलिए रिसेप्टिक्युलर ब्रांचेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं, और इस रिसेप्टिकल्स पर जो है फ्लास्क लाइक जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, और उस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है एंथ्रीडिया और ऊगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और इस रिसेप्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कंसेप्टिकल्स, कंसेप्टिकल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी थैलस स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है थैलस की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। उसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर सार्गेसम की इंटरनल स्ट्रक्चर हम जो है मेन एक्सिस और एयर ब्लेडर और लीफ, इनके जो है ट्रांसफर सेक्शन या इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेन एक्सिस की जो है मुख्य अक्ष जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। मेन एक्सिस की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड है, मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मेडुला।
अब सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो है एक, हम जानते हैं कि देखो बाहर की ओर सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस के रूप में हमें दिखाई देती है। और ये जो है मेरिस्टेमेटिक नेचर की होने की वजह से इसमें क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक नेचर पाई जाती है और इसकी वजह से इस आउटर मोस्ट लेयर को नाम दिया गया मेरिस्टोडर्म। और इस मेरिस्टोडर्म की जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती है और कॉल्यूमनर सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्तंभाकार कोशिकाएं कॉल्यूमनर सेल्स की बनी होती है और डेंसली पैक्ड होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं, डेंसली पैक्ड होती है। इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा फ्यूकोसेंस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स पाए जाने की वजह से जो है ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। और अगर मैच्योर मैन एक्सिस है तो उसमें भी जो इसके चारों ओर, इस मेरिस्टेम के चारों ओर म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल्स भी पाई जाती है। यंग मैन एक्सिस में नहीं पाई जाती है। मैच्योर जो मैन एक्सिस होता है उसमें मेरिस्टेम के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस एनवलप पाया जाता है। इसके चारों तरफ से एनवलप पाया जाता है। नेक्स्ट हम जो है कॉर्टेक्स की बात करें मैन एक्सिस के। ये जो है अधिकांश भाग, ज़्यादातर पार्ट जो है कॉर्टेक्स से ही बना होता है इस मैन एक्सिस का। और ये लूजली अरेंज्ड सेल है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और ये रिजर्व फूड मटेरियल से भरे होते हैं। और इसी कारण जो है इस कॉर्टेक्स को जो है इसका स्टोरेज रीजन कहा जाता है। मैन एक्सिस का स्टोरेज रीजन जो है वो कौन सा है? कॉर्टेक्स है। और उसके बाद हम मेडुला की बात करें, पित्त की बात करें। और ये पित्त जो है सेंटर में, अब देखिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ होता है। और इसका काम क्या है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है या फिर मेटाबोलाइट्स ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये एक मैन एक्सिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं एयर ब्लैडर की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारे सामने एयर ब्लैडर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें भी जो है हमें मेरिस्टेम नज़र आ रहा है और उसके बाद कॉर्टेक्स और सेंटर में पित्त हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता है, एयर कैविटी पाई जाती है। तो जो सबसे बाहर की ओर मेरिस्टेम सेल्स जो है वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है। सेल्स कैसी होती है? रेडियली इलोंगेटेड नैरो सेल्स। और इसमें जो है म्यूसिलेजिनस एनवलप प्रेजेंट पाया जाता है सरफेस पर। सरफेस पर क्या होता है? म्यूसिलेजिनस एनवलप पाया जाता है सरफेस पर और ये सिंगल लेयर। उसके बाद हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर एयर ब्लैडर के अंदर मल्टी लेयर्ड होता है, 4 to 8 लेयर्ड, 4 से 8 तक जो है इसकी परतें पाई जाती हैं और ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। और इसके जो है मेडुला एब्सेंट होता है और सेंटर में जो एयर कैविटी पाई जाती है, एयर कैविटी पाई जाने की वजह से ये जो है मैन एक्सिस को या प्लांट को जो है क्या प्रोवाइड कराता है? बायोन्सी प्रोवाइड कराता है और उसकी वजह से ये फ्लोटेड रहते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं लीफ स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर हम देखते हैं और लीफ में भी जो है अगर हम इसको एनाटॉमिकली डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसमें भी जो है ये मेरिस्टेम हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया और ये मेडुला हो गया। 3 पार्ट में जो है ये लीफ जो है डिस्ट्रीब्यूट है, विभाजित है। सबसे पहले हम मेरिस्टेम को देखते हैं। ये एपिडर्मिस या फिर मेरिस्टेम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की लेयर जो है मेरिस्टेम कहलाती है। और ये मेरिस्टेम जो है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। कैसी होती है? रेडियली इलोंगेटेड होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर भी क्रोमेटोफोर्स और रिजर्व फूड मटेरियल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद हम कॉर्टेक्स की बात करें। सेंटर में जो है ये हमें कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है ये पूरा। और कॉर्टेक्स देखें तो सेंटर पोर्शन में जो है वहाँ पर कॉर्टेक्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा और जो ब्लेड्स है या किनारे जो है एजेज है वहाँ पर यहाँ ये जो कॉर्टेक्स जो है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल पोर्शन कम होता है। ठीक है। और सेंटर में जो है ये मेडुला, और मेडुला जो है सेम वही फंक्शन है जो मैन एक्सिस के मेडुला का होता है, वाटर कंडक्शन का काम भी करता है और जो है मेटाबोलाइट्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये जो है ये इसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और बात देखते हैं, एक और संरचना देखते हैं कि लीफ की दोनों सरफेस पर, लीफ जो है उसकी दोनों सरफेस पर स्टेराइल कंसेप्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक ये देखिए आप, स्टेराइल कंसेप्टिकल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
इधर भी है, इधर भी है। तो दोनों सरफेस पर, अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, वहाँ पर स्टेराइल कंसेप्टिकल्स नज़र आते हैं। इस स्टेराइल कंसेप्टिकल्स को हम कहते हैं क्रिप्टोब्लास्ट या फिर क्रिप्टोस्टोमेटा। तो ये क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर क्रिप्टोब्लास्ट या स्टेराइल कंसेप्टिकल्स तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है बाहर की ओर एक पोर के द्वारा खुलता है। ये जो कंसेप्टिकल्स है, स्टेराइल कंसेप्टिकल्स या क्रिप्टोस्टोमेटा, बाहर की ओर एक पोर के द्वारा खुलता है। एक पोर होता है छोटा सा, और उस पोर को कहते हैं ऑस्टियोल। और इस ऑस्टियोल से जो है बाहर की ओर अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर वो निकली रहती है, और उसको हम कहते हैं पैराफाइसिस। क्या कहते हैं? पैराफाइसिस। तो ये जो है लीफ की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो है ये सार्गेसम की जो है सिस्टमिक पोजीशन, जो है क्लासिफिकेशन, हैबिटेट या अकरेंस, और जो है एनाटॉमिकल या इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी पूरी हुई। थैंक यू।